کہ یہ ہوا کیسے، اور وہ بھی ایسی جگہ جس پہلگام کو جموں کشمیر کے تمام ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں سب سے سیفسٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ امرناتھ کا روٹ ہے، اس میں 3 ٹائر سیکیورٹی آلویز ہوتی ہے، اس میں تمام تر انتظامات ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ سیکیورٹی لیپس بھی کہاں سے ہوئے، آخرکار یہ ٹیررسٹ آئے کہاں سے، ان کے سپورٹ لائن کون سی تھی؟ کسی کے فتوا کے بغیر، کسی کے کال کے بغیر، کسی کے اعلان کے بغیر جو جموں کشمیر کے تمام لوگوں نے، تمام تر ذاتیوں نے، تمام تر خطوں نے جو ریسپانس کیا، یہ اس چیز کی عکاسی ہے کہ اس طرح کے حادثے کسی بھی انسان کو جائز نہیں لگتے. تو اس لیے نیشنل لیول پر امیڈیٹلی اگر بھارت سرکار نے دیش میں ایک واتاورن بہتر بنائے رکھنے کے لیے آل پارٹی بلائی، وہ بھی ایک سراہنی قدم تھا اور بروقت تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس میں تمام دیش کی پولیٹیکل پارٹیز نے جا کر کے اپنا پورا وشواس، اپنا پورا سمرتھن دیش میں حالات کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے سٹیزنز کو سرکشا پردان کرنے کے لیے بھارت سرکار کو پوری طرح تعاون دیا. اور یہاں تک بھی تمام نیشنل پارٹیز نے، ریجنل پارٹیز نے وہاں پر کہہ دیا کہ جو بھی اقدامات بھارت سرکار اٹھائے گی اس طرح کے حملوں کو جواب دینے کے لیے، یا آگے جیسے سریندر چودھری جی نے کہا کہ یہ کتنی بار ہم یہ ریزولوشنز پاس کریں، یہ کنڈولنسز پاس کریں اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اسی آڑ میں کہ جموں کشمیر کے اس خطے میں امن قائم ہو، ملیٹنسی ختم ہو، اس ڈائریکشن میں آلریڈی مرکزی سرکار نے بہت سارے اقدامات اٹھائے، جس میں 5 اگست 2019 کا بھی جو فیصلہ لیا گیا وہ اسی خاطر لیا گیا. دیش کو یہی بتایا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی ختم کرنے کے لیے ری آرگنائز کرنا ہے، ڈاؤن گریڈ کرنا ہے، 370 ہٹانا ہے. اب اس کے بھی 7 سال گزر گئے. وہ 7 سال کے اندر بھی جس طرح کے واقعے پیش آئے، اس کے بعد بھی میرے خیال سے جو قدم اٹھائے گئے وہ اس ڈائریکشن میں ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے، ملیٹنسی کو جواب دینے کے لیے کم تھے، بلکہ سیاست کے لیے زیادہ تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج بھی اس واقعے کو لے کر تمام دیش 140 کروڑ لوگ ایک مت میں ہیں، پوری طرح سرکار کے سپورٹ میں ہیں، اور کوئی راجنیتی اس میں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. مگر اب یہ ذمہ داری بھارت سرکار کی ہے کہ وہ کون سے اقدامات اٹھائیں تاکہ اس کے بعد اس طرح کے واقعے نہ ہو. اس واقعے میں جس طرح کے نہتے لوگوں پر جس طرح سے گولیاں چلائی گئی اور جس طرح سے وہاں سے بھاشا استعمال کی گئی، میری اپیل ہوگی، خصوصی اپیل ہوگی کہ گولیاں چلانا ان کا ایک ٹارگٹ، ایک میسج، مگر جو وہاں بھاشا استعمال ہوئی، جو طریقہ اختیار کیا گیا، وہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. وہ کوئی معمولی ایجنڈا نہیں ہے. چاہے انہوں نے ہندوز کو الگ کیا، چاہے مسلمانوں کو کہا تم الگ ہو جاؤ، چاہے بچوں اور مہیلاؤں کو کہا تم الگ ہو جاؤ، اور یہ انہوں نے اس سیاحوں کی شہادت کے علاوہ دیش میں ایک افراتفری پھیلانے کا ایجنڈا دیا. اور اب ایک طرف اگر ہم کو یونٹی دکھانی ہے پورے دیش میں تمام تر لوگوں کو، ایک طرف اگر سرکار نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیسے، اور وہ بھی ایسی جگہ جس پہلگام کو جموں کشمیر کے تمام ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں سب سے سیفسٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ امرناتھ کا روٹ ہے، اس میں 3 ٹائر سیکیورٹی آلویز ہوتی ہے، اس میں تمام تر انتظامات ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ سیکیورٹی لیپس بھی کہاں سے ہوئے، آخرکار یہ ٹیررسٹ آئے کہاں سے، ان کے سپورٹ لائن کون سی تھی، وہ بھی اپنی جگہ سرکار کا جانچ کرنے کا کام ہے. اس میں بھی سمرتھن ہم سب لوگوں کا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کس راستے اور کن کے سہیوگ سے
वहां पर पहुंचे। मगर सर दूसरी बात ये भी है, जहां अगर ये स्टेट होती तो आज लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड सरकार के पास होता, जो यूटी होने की वजह से नहीं है। इसलिए हम इस वक्त स्टेट सरकार को डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते। जब उनके हाथ में है ही नहीं तो हम इनको सवाल क्या करेंगे। इसलिए जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, जो उसमें ऑफिसर्स, जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी, मेरे ख्याल से उसको भी नजर डालने की जरूरत है। उसको पर्दा नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसमें भी कहीं कहीं पर लैप्सेस रहे हैं, मरकजी सरकार को चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए कि वो उस सेक्शन में भी देखे कि ये लैप्सेस कहां रहे। और ये बात भी यहां लाना जरूरी है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में अवाम में वैसे ही एक अफवाह थी, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज भी कह रही है कि हमारे पास इनपुट था। अगर इनपुट भी था, हवा भी थी, तो उसको कर्ब करने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये कहां पर ये चूक हुई कि इतने लॉन्ग जंगल में जाकर, और क्यों बाइसरन इतना खुला छोड़ के सवाल उठता है कि सिक्योरिटी कहेगा कि हमें पूछा नहीं गया, परमिशन नहीं गया। हिस्ट्री है कि वहां बाइसरन के लिए, आड़ू के लिए, चंदनवाड़ी के लिए, बेताब वैली के लिए कभी कोई डिपार्टमेंट परमिशन नहीं मांगता। टूरिस्ट आते हैं, होटलियर्स और गाइड उनको जहां वो चाहते हैं वहां चले जाते हैं। अगर इतना बड़ा रश इन पिछले एक महीने में बाइसरन के लिए दिखाई दिया, पर डे 400-500 टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी, जो इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी, वो भी कहीं ना कहीं लैप्स है, जो होम मिनिस्टर ने खुद भी एक्सेप्ट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मगर एक्सेप्ट करना काफी नहीं है। एक्सेप्ट करने के साथ उस साइड को भी देखना है, क्या हमारे अंदर तो नहीं बैठे हैं कोई ऐसे लोग जो इस तरह के वाकयात को अंजाम देने में मदद करते हैं। तो इसलिए सर, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑलरेडी इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पर वर्किंग कमेटी, जो अपेक्स बॉडी होती है, बुलाई और कड़ी से कड़ी लफ्जों में इसकी निंदा की और अपील भी की कि देश को इस वक्त यूनाइट होने की जरूरत है। मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता था कि इन टेररिस्ट्स ने जो तरीका इख्तियार किया, अब हमने देखना है देश टेररिस्ट्स के उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है या उसको डिफीट करने के लिए इकट्ठे होता है। मैं अपील करना चाहूंगा इस हाउस से, जैसे आपने रेजोल्यूशन में लिखा, आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम एनजीओज, तमाम सोच रखने वालों को, पर्टिकुलरली आपने मीडिया के लिए कहा। मेरे ख्याल से इस हाउस से उन मीडिया हाउसेस को जबरदस्त मैसेज जानी चाहिए, जो पर्टिकुलरली अब इसको इतना बड़ा हवा देकर और अपना एजेंडा चलाते चलाते देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को नुकसान करना चाहते हैं। ऑलरेडी रिकॉर्ड्स में लाया गया, हमने कहा ये अटैक न सिर्फ इंसानियत पर हमला है, न सिर्फ हमारे भाईचारे पर हमला है, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर। कई लोग इसको कश्मीर की इकोनॉमी पर कहते हैं, कई लोग सोचते हैं पहलगाम नुकसान होगा, पहलगाम फिर उठेगा। मगर अगर हम सब लोग इसमें इकट्ठे नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी से बुरी हालत में है। इसका असर जम्मू में भी पड़ेगा, इसका असर कश्मीर में भी पड़ेगा, इसका असर सब जगह पड़ेगा। तो इसलिए ये स्पेशल हाउस बुलाने का मकसद है कि हम सब लोग तमाम तबके फिक्र से यहां से एक मैसेज, स्ट्रांग मैसेज दें पूरे देश को, पूरे दुनिया को, कि हम उन टेररिस्ट्स के उस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे जो उन्होंने वहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश की। और यहां हिंदुस्तान ने ऐसी मिसालें बहुत ओकेजन्स पर दिखाई है जब यूनाइट होने की जरूरत हुई। आज कोई चुनाव नहीं, किसी को चुनाव के लिए इसमें कोई खुराक निकालना हो वो उसको देख ले, मगर मैं इंश्योर करता हूं कांग्रेस पार्टी ने दिल खोल के तय किया कि इस इंसिडेंट पर कोई वोट बैंक बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कोई भी हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें किसी भी दिल में कोई जख्म हो। हम सारे लोग होकर, इकट्ठे होकर एक स्ट्रांग मैसेज यहां से जाए कि हम जम्मू कश्मीर आज भी मेहमान नवाज हैं, पहले भी थे, और साथ में जैसे रेजोल्यूशन में आपने कहा, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, जो जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स,
जो जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी पर्पज से हिंदुस्तान के दूसरे बागों में हैं, वहां भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को जाना चाहिए कि हम यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं, हम यहाँ पर किसी भी इंसान को अपने लेवल पर नुकसान नहीं होने देंगे, मगर हिंदुस्तान बाकी रियासतों के लोग भी जिम्मेदारी ले कि हम उन जम्मू कश्मीर के बच्चों को बच्चियों को उसी तरह से यहाँ उसी नजर से देखें जैसे हमारे पहलगाम के घोड़े वालों ने देखा। अगर इंसिडेंट भी हुआ, सिक्योरिटी तक कब पहुंची क्या पहुंची वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मगर इंसिडेंट होने के बाद आधे घंटे तक लाशों को उठाना, जख्मियों को उठाना, उन जख्मी परिवारों को अपने कंधों पर उठाना, उस ट्रैक पर नीचे लाना, अस्पतालों पर पहुंचाना, टैक्सियों में बिठाना, फ्री गाड़ी देना, फ्री खाना देना, उस इंसानियत को भी हमें यहाँ उस जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इनहेरिटेड जो मेहमान नवाजी है, चाहे वो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी यहाँ से हमको शाबाशी देनी चाहिए कि इसी को जम्मू कश्मीर कहते हैं। आज भी मैं कल था पहलगाम में, हापतनाड़, ताजियत और पहलगाम तक, मैंने आज भी देखे वहां पर बहादुर टूरिस्ट महाराष्ट्र से, आपके तमिलनाडु से, दूसरी जगहों से, जिनका लगातार टूर था, वहां पर सहमे हुए जरूर थे, मगर उन्होंने मर्दानगी का सबूत दिया। उन्होंने कहा हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है, हम रहेंगे। और उनको मतलब लोकल लोग निशावर हो रहे थे हर तरीके से, हर घरों में बिठा कर, होटल में नहीं रहना, हमारे घरों में रहो। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा तहजीब है, और इसको ज़ख्म न पहुंचे किसी भी इंसिडेंट से, हमें इस बात का यहाँ इरादा करना है। एंड में मैं फिर यही कहूंगा, हमें उन टेररिस्ट्स के दिए हुए एजेंडे को नहीं बूस्ट करना है, हमने उसको हराना है। आज भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी हो रियासत में, तारिक आमी साहब हो, हमें सबको मिलकर एक ही आवाज में यहां से भाईचारे की जवाब देनी है, और वही एक मैसेज पूरे दुनिया में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। बाकी मीडिया वाले बाहर बहुत सवाल उठा रहे हैं, अभी तो मेरे से पूछ रहे थे, मीर साहब आप जंग चाहते हो या नहीं चाहते हो? ये कौन से सवाल है? कौन सा गुलाम अहमद मीर के कहने पर नरेंद्र मोदी जंग करेगा नहीं करेगा? मेरे ख्याल से उसमें हमको भी एहतियात करना चाहिए। हमने एक ही वर्ड में कहा, उन्होंने 5 इकदाम उठाए, हमने अप्रिशिएट किया, हमने कहा ओके गो अहेड। इस तरह के इकदाम पहले भी उठाए गए, पुलवामा के बाद कहा गया, पठानकोट के बाद कहा गया, बालाकोट के बाद कहा गया, उड़ी के बाद कहा गया, और कितने सारे इंसिडेंट के बाद कहा गया, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अनाउंस करना तो कर ही लेती है सरकार, इम्प्लीमेंट हो और वातावरण अच्छा हो, ये हम चाहते हैं। बाकी भारत सरकार, पूरा देश का ताकत सपोर्ट इस वक्त उनको साथ है, देश के साथ है। जो भी वो इकदाम उठाएंगे इस मिलिटेंसी को खात्मा करने के लिए, वो चाहे इधर उठाना हो उधर उठाना हो, वो उनकी डिस्क्रिप्शन, और हम देखेंगे वो कितना स्ट्रांग स्टेप उठाएंगे, जिससे इस पहलगाम बैसरन के बाद हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं वो आंसू देखना चाहते हैं फिर एक बार जो जम्मू कश्मीर के नाम से यहाँ हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो और सियासी रोटियां पकाई जाएं। इस चीज का हमको एहतियात करना है, यही मेरी गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया इस पर बोलने से।